Hello, dear aspirants. So, I hope you all are enjoying the concept talk as we have been entering into the integral. And the thing is, when we feel ki okay, integrations and differentiations we know at the JE level or at the graduation level, but things can backfire, right? That we have seen in the previous concept talks as well. So here nothing is easy or tough. It is all about the systematic learning and you are preparing in right way or not. Right. So through this concept talk, I'm just trying to be as refined as possible to address the demand of UPSC exams. Right. So as the title suggests, today we are discussing about summation and integral. Right. So for you may like many of you might be thinking कि यार ये तो अपने को infinite series वाला आता है करके, because from the बचपन we are doing this and all, but I would like to suggest you don't miss the opportunity to connect the dots. चलो. So when we talk about this integral calculus, as far as our paper 1 is concerned, CSE and Forest Services, so there is a small topic, summation of infinite series. Okay, summation of infinite series through the finite integral. देखेंगे ध्यान से कि to get the summation of an infinite series through a finite integral, if this is the instrument which can solve all the issues, then why we study the series का convergence, why we have so much tests to check the convergence. Are you getting my point? So the curiosity part कि ऐसा नहीं है कि इस finite integral वाले method को सीख कर we can do anything, but why you didn't think like this till now? What is the reason behind that? Why you don't connect the different dots? ठीक है, चलो let's go. Be on the board please. Suppose that I am giving you an integral a to b f of x dx. Okay, this is integral. I'm giving you some series, let's say I going from 1 to infinity. Here you have some function of I by n into 1 by n. So why like I was slow here? Why I was thinking something over this expression? What is the need of that? So thing is, when you talk about this particular method, so the very first point which I would like to introduce is this method can give solution to some special kind of series, to some special kind of series. Means you cannot say that this is something which can be generalized over any of the series. Getting my point? और पढ़ने और सीखने का यही एक अच्छा तरीका होता है कि पहले दिमाग में ये चीज़ें आए कि यार क्यों ओरिजिनेट हुई कोई चीज़. आई एम नॉट टेलिंग यू कि आपको हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ने लगना है जाके, नॉट एट ऑल. लेकिन ये जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ तो आपकी लाइफ को आसान कर रहा हूँ, चीज़ों को कनेक्ट कर रहा हूँ आपके लिए. तो आपको केवल कॉन्सेप्ट टॉक्स के थ्रू होकर जाना है, दैट्स इट. चलो, so now we are interested what are those special series.
You getting my point? The first point. So in today's target, the first target is कि वो कौन सी सीरीज है. The second target is how to implement, right, to get the desired result. The third target is we will never compromise because demand of UPSC, if we are not addressing, then merely we are just turning into philosophies, nothing more than that. Did you get my point, dear fellows? So that is the point for which we are gonna discuss now. बेसिक से ही बात शुरू हुई है तो बेसिक से ही करते हैं. I'm sorry. Can anyone tell me what does this interpret? Again I am telling you, here the concept talk is for everyone, but if you are overconfident, then I'm a bit sorry over that. ठीक है. चलो. Can you tell me what does this integration mean? A to b f of x dx. इसका मीनिंग क्या है भाई? चले. Be on the board please. When you say integration a to b f of x dx, ज्योमेट्रिकली अगर आप इसको देखें, ज्योमेट्रिकली it represents, geometrically it represents the area under the curve f of x from x equals to a to x equals to. Okay dear fellows, how it is so? How it is so, right? So let's go into that now. आराम से देखते रहिए, आपका जो भी स्टीरियोटाइप्स होगा आज दूर हो जाएगा, इतना मेरा गारंटी है. ओके, चलो. सपोज दैट डियर फेलोज दिस इज सम कर्व f of x. Okay, and let's say this is the point x equals to a, and let's say this is the point x equals to b. I want to get this area, मतलब under the curve, so I am interested in knowing this area. Fair enough? कोई दिक्कत किसी को? बहुत बढ़िया. अभी if you observe कि if I take some point here, I take some point here, and I consider a rectangular strip. क्या कंसीडर कर रहा हूं? Let's say this is the point Q, P, this is the point Q. Okay, so I have considered, ध्यान से देखते रहना, सीधे समेशन पर ही ले जाऊंगा. अगर पेशेंस है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या कह सकते हैं. So I have considered a rectangular strip here. Fair? अभी दिखाने के लिए बड़ा बना दिया, but that is infinitesimally small rectangular strip. Okay, what it is? Infinitesimally small rectangular strip. ठीक है. अब ये जो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आपने लिया है, ध्यान से देखिएगा. इफ दिस इज वेरी स्मॉल देन दिस आर्क कैन बी कंसीडर्ड एज अ स्ट्रेट लाइन. सो सपोज दैट इफ दिस इज द पॉइंट x कॉमा बाई एंड दिस इज द पॉइंट x प्लस डेल्टा x कॉमा बाई प्लस डेल्टा बाई. So obviously this will be the point x and this will be the point x plus delta x. Check it out please. So if you talk about this,
this is delta x, right or not? Abhi if you observe here, so if you talk about कि this is the rectangular strip, ध्यान से देखते रहना, this is one more portion. If I want to get the area of the rectangular strip, so इस rectangular strip का जो area you will get, that basically you will get by into delta x, लंबाई गुणे चौड़ाई से. बाकी यहां पर अलग अलग रीजंस कंसीडर करके भी हम उस एरिया की बात कर सकते हैं. फेयर, कोई इशू? चलिए. सो बाई इज नथिंग बट द कर्व बाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. सो बेसिकली हम क्या करते हैं, इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो मुझे एरिया मिला है, इफ आई इंटेग्रेट टू गेट फुल एरिया, right or not? So this will be converted to x equals a to b by dx, and that can be written as a to b f of x dx. So this is the meaning, this is the story of integration x equals to a to b f of x dx. Any doubt till here? Anyone? I hope no. Fair. चलिए, इसका मीनिंग हम समझ गए. अब देखना ध्यान से, बेसिकली आइडिया क्या है इंटीग्रेशन के बिहाइंड और समेशन के अंदर में. व्हाट आई डू इज, ध्यान से देखिए, मैं यहां पर एक एक करके ना इसको सब इंटरवल्स में बांट लूं, ए टू बी को. ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, बी ऑन द बोर्ड प्लीज. What I do, I divide the interval. अब हम सीरीज पर जा रहे हैं, एकदम तैयार हो जाइए. Divide the interval a to b into n equal sub intervals. ठीक है, कहने का मतलब आप a से b में क्या कीजिए, a कॉमा b माइनस a बाई एन, सॉरी a प्लस b बाई एन, a कॉमा a प्लस b बाई एन, राइट. अगला वाला इंटरवल आपने क्या किया है, n इक्वल सब इंटरवल्स में बांट दिया है. अभी नेक्स्ट इंटरवल व्हाट यू टेक, उसके लिए आप ले लीजिए इस पॉइंट से, लेट से a प्लस बी माइनस ए बाई एन से a प्लस 2 इंटू बी माइनस ए बाई एन, एंड कीप ऑन डूइंग दिस. सो अल्टीमेटली यू विल हैव a प्लस एन माइनस बी बाई एन कॉमा b. So in this manner you will cover the whole interval a comma b. तनाव बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि मास्टर आपकी भावनाओं को समझता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव लेट्स से 1 to 2 एंड 5 इक्वल सब इंटरवल्स में आपने डिवाइड किया इसको. तो 5 इंटरवल्स जब लोगे तो 2 माइनस 1 बाई 5 लेंथ हो जाएगा ऑफ द इंटरवल. So that is 1 by 5. So what you do, 1 comma 1 plus 1 by 5, 1 plus 1 by 5 से 1 plus 1 by 5 plus 1 by 5, and rest will be 4 by 5 to 2. यही है ना, नो सॉरी नॉट, 9 by 5 हो जाएगा ना, 1 plus 4 by 5 that is 9 by 5. Okay. So what you have done, you have divided the interval into 5 equal sub intervals. Fair? कोई दिक्कत किसी को भी? I hope no. What I am gonna do now कि
इंटेग्रल एंड समेशन, इसके बारे में थोड़ा सा अब समराइज करते हैं हम चीजों को, देखना ध्यान से। व्हाट आई एम गोना डू नाउ कि आई विल टेक अ फंक्शन देखिए ध्यान से, f ऑफ a प्लस आई इंटू इंटू b माइनस a अपॉन n, and my summation is going from going from 1 to n। अगर आप कहें कि सर आपने ये क्या लिख दिया, तो मैं आपसे कहूंगा प्यारे बच्चों i का वैल्यू 1 ले लीजिए, तो फंक्शन का वैल्यू एट द पॉइंट a प्लस बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए, प्लस फंक्शन का वैल्यू एट द पॉइंट a प्लस 2 इंटू बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए बाई एन, प्लस फंक्शन का वैल्यू एन पुट करेंगे, सो फंक्शन का वैल्यू एट बी ए गॉट कैंसल्ड इंटू बी माइनस ए बाई एन। चेक इट आउट प्लीज, किसी को कोई दिक्कत? सो दिस समेशन इज नथिंग बट ऑफ दिस फॉर्म, आराम से। नाउ व्हाट आई डू, नाउ इफ वी टेक, देखना ऑलमोस्ट वी आर डन नाउ, डोंट लूज द पेशेंस, ओके। इफ वी टेक limit n tends to infinity, fair? So the summation, the above summation can be written as, देखिए ध्यान से, इंटेग्रेशन a to b f of x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन क्या बोला था अभी अभी? इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एलिमेंट्स का समेशन। तो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एडिंग द स्मॉल थिंग्स by taking infinitesimally small elements. So that is the meaning of this summation here now. So what you can have here, देखना ध्यान से, limit n tends to infinity, I going from 1 to n, f of a plus iota b by n into b minus a by n। कोई दिक्कत? ये क्यों आ गया? अभी यहां पर मैंने इंटीग्रल नहीं बोला, बट इफ वी टेक such infinitesimally small elements and adding keep on adding, definitely I am gonna get the integral of f of x dx, because this is the form f of x, this is of the form dx. Check it out, f of x d of x, यही तो था। Till here, if you have any doubt, you can have a quick recap over the things. Fair dear fellows, चलिए बी ऑन द बोर्ड प्लीज। अब क्या होता है, नाउ वी आर गोना स्टार्ट अ गेम हियर, देखना ध्यान से, बी ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन। और आपने क्या रटा हुआ था आज उसको वेरीफाई कर लीजिए। a प्लस आई बी minus a by n, let's put this as something else. I am putting this as k by n for example, आराम से बिना किसी तनाव के, ठीक है। I am putting this expression as k by n, okay, कोई दिक्कत? So this, so 1 कन्वर्ट्स इनटू, अगर आप इसके आरएचएस की बात करें
So this will be converted to limit n tends to infinity, k going from na plus nb, say nb, f of k by n, ध्यान से देखते रहना, f of k by n into 1 by n. चेक कर लीजिए प्लीज. If you have any single doubt here, then take pen and paper. Please use this here to get the expressions, and please cross check whether you are getting like this or not. मिल गया? Any doubt? Here you will observe a ka value you will be getting by some phi n by n, here psi n by n, obviously limit n tends to infinity, here limit n tends to infinity, f of x dx. Phi n and psi n are what? कोई दिक्कत किसी को भी? फाई एन और साई एन क्या है? फाई एन इज एन ए प्लस एन बी. आराम से एकदम तनाव नहीं लेना है, ठीक है? साई एन इज एन बी. बाकी भूल चूक लेने देनी है ना. दिस इज द एक्सप्रेशन you got actually, and that you can write an exam point for you for your UPSC prep. देख लीजिए आराम से. If you have any doubt you can ask. So no matter आपने क्या रटा लगाया था, क्या नहीं लगाया था, I have given you the most like verified form. अब आप देख लीजिए आपने जो रटा था वो भी मैं बता देता हूं. क्या रटा था आपने? आप ही बता दीजिए. From 2 we remember like convert the given series, convert the given infinite series into the form summation k going from some phi n to psi n f of k by n into 1 by n type. Okay, then replace k by n को x से 1 by n को dx से, और आपने लगा दिया था रट्टा कि लिमिट हो जाएंगे 0 से 1, पर लिमिट हमेशा 0 से 1 होंगे ऐसा जरूरी नहीं हो सकता. लिमिट विल बी कैलकुलेटेड बाय these expressions. Are you getting my point? Everyone? Is there any single doubt? तो मैं सजेस्ट करूंगा आप लिख के रखें कि फाई एन इज एन ए प्लस एन बी टाइप, साई एन इज एन बी टाइप. ओके, एंड द लिमिट, द लोअर लिमिट कैसे होगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी फाई एन बाई एन, limit n tends to infinity psi n by n. So we will get here a to b, या फिर ये जो मान लो अगर आपको a मिल गया, ये b मिल गया, a to b f of x dx, and that will give you the summation of the infinite series. Now if you have a quick relook over the things which I promised, कि क्या हर सीरीज का समेशन फाइनाइट इंटीग्रल के थ्रू निकाला जा सकता है? तो व्हेन आई से कनेक्टिंग द डॉट्स इज द रियल विजन फॉर दिस कॉन्सेप्ट टॉक, देन यू कैन रियलाइज दिस थिंग. ओके,
तो मैंने कुछ नहीं किया, कितना लिया आपका 15 मिनट लिया। 15 मिनट के अंदर आपको वो चीज समराइज कर दी। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, नॉट एट ऑल, लेकिन अगर एक बार आपको ये समझा दिया गया तो अब आपका दुख कम हो गया, आपको याद रखने में सहूलियत हो जाएगी। ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मैं फील करता हूं एज एन एस्पिरेंट। फेयर? सो व्हाट वी कैन आंसर ओवर द आवर एजेंडा कि नहीं, if the series of this form, then only we can calculate the summation of that series through the finite integral a to b fx dx type. If the series is not in this form, then I'm sorry, then we need to have some other instrument to cross check the things. Say yes or no. Is this clear to all? Any doubt? Anyone? आज के बाद रट्टा तो नहीं लगाएंगे, पक्की बात है ना? बाकी यहाँ पे कोई तनाव हो तो ये जस्ट इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके आई की जगह 1 ले लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, a प्लस बी माइनस ए बाई एन। सो एन ए प्लस बी टाइप यहाँ पे एक्सप्रेशन, आई की जगह n ले लीजिए तो n से n कट जाएगा, यहाँ पे b मिल जाएगा। अच्छा, आई एम सॉरी, देखिए यहाँ से आई गेस आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए बोल देता हूँ। इफ आई पुट i का वैल्यू 1 हियर, क्योंकि मुझे यहाँ पर k चाहिए ना, सो 1 मीन्स b माइनस ए बाई एन हो जाएगा। सो एन ए प्लस यहाँ पे बन जाएगा b माइनस ए। ये वाला n जब इधर आएगा, देखिए ध्यान से, ये वाला n जब इधर आएगा, सो दिस विल बिकम एन ए एंड दिस विल बिकम एन बी टाइप, राइट, एंड हियर दिस विल बिकम n, अब क्या रखना n, सो n विल बी कैंसल्ड, दिस वाला n बी टाइप। ओके, फेयर, check it out please. Still if you feel कि anything is there, so you can suggest me as well. Yeah, not an issue. I hope I have replied you with the strong words here, with proper like from my side the curiosity part, but we never forget how these things can be used. So let's have some questions as well in supporting, because I always talk about the systematic learning, and when I say systematic learning, I am very much clear, मतलब किसी भी एग्जाम के लिए अगर मैं पढ़ना चाहूं तो नो मैटर द एग्जाम इज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, मीन्स आई कैन नॉट इग्नोर द डेफिनेशंस पार्ट। ध्यान से देखिएगा, आई कैन नॉट इग्नोर द डेफिनेशंस, नो मैटर इन मैथ्स ऑप्शनल और वट एवर यू आर। देन आई मस्ट सॉल्व सब्जेक्टिव एग्जाम्पल्स, ताकि हर डेफिनेशन का मतलब क्लियर हो। आई कैन नॉट कंप्रोमाइज फ्रॉम प्रॉब्लम सॉल्विंग, हियर इट कम्स ऑन दैट स्पेशल एग्जाम। लेट्स से वी हैव सब्जेक्टिव पेपर, सो हाउ टू राइट द मैथमेटिकल लैंग्वेज फॉर दैट, दैट इज द लाइक प्रॉपर अटेंशन फॉर अस टू गिव हियर। कई सारे लोग केवल फॉर्मूला टाइप की स्टडी करते हैं, फिर दे डोंट नो हाउ टू राइट द प्रॉपर मैथमेटिकल लैंग्वेज, एंड दे फील कि एनालिसिस नहीं करेंगे, अलजेब्रा नहीं करेंगे, कैलकुलस नहीं करेंगे। कैलकुलस में दे फील कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से ही काम चल जाएगा। बट वंस यू ऑब्जर्व द PYQs, यू विल कम टू नो कि थिंग्स आर ईजियर, बट द वे यू हैव स्टडीड दैट वाज नॉट द राइट वे टू प्रिपेयर। So when I talk the systematic learning, you don't forget the PYQ's proper analysis. I am not saying answers. Many people make you confused by just saying कि PYQ's answers करके, like I get, ये थोड़ा negative चला गया क्या? नहीं, sorry, yes, if it is, I'm just trying to convey my emotions with that कि when you say कि PYQs, एक एक PYQs पर काम करने का मतलब ये नहीं होता है कि उनके आंसर्स याद कर लेना। एक एक PYQs पर काम करने का मतलब होता है उस डिमांड, उस एग्जाम की डिमांड को एड्रेस करना।
अगर आप यूपीएससी को देखें प्यारे बच्चों, यू विल फाइंड कि यार वहां पर कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस पर बात होती है। किस पर बात होती है? कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस पर बात होती है हमेशा। दे डोंट डू द थिंग्स रैंडमली, नो मैटर इट इज लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, नो मैटर इट इज स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, नो मैटर इट इज द आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, नो मैटर इट इज द सोर्सेस एंड सिंक्स इन फ्लूइड डायनामिक्स, whether it is real analysis like convergence, like the sets and all, algebra के अंदर भी they always find those categories of questions which are conceptually driven. So मेरे हिसाब से whenever I suggest or I talk, I always say this can be the way to prepare in right way. ठीक है, बाकी एंड में एग्जामिन योर सेल्फ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको टेस्ट लगाने चाहिए, अपने आप को रेगुलर एग्जाम करना चाहिए, नहीं तो यू विल बी लाइक जस्ट क्रैमिंग अप द फैक्ट्स एंड फिगर्स। फेयर डियर फेलोज, सो आज के इस लेक्चर में हमने आपको, हालांकि लास्ट में ये मेरी तरफ से मैंने आपको दे गया, ठीक है बहुत बार ऐसा टाइम मिलता नहीं है कि आपको वो मैसेज कन्वे हो पाए कि एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट टॉक है क्या। मैं आपको सिंसियरली बोलूं, ये रेगुलर बैचेस का रिप्लेसमेंट नहीं है, बट जब आप रेगुलर बैचेस कर रहे होते हैं, ये यूपीएससी है, यहाँ जनरल स्टडीज का भी प्रेशर है, एसेस का भी प्रेशर है, एंड एवरीथिंग वी हैव। सो व्हाट हैपेंस many of the times we are so overburdened कि we lack in revision, right? So if you have the systematic learning, देखिए अब बात हो रही है तो चलो बात कर ही लेते हैं। If you talk about the systematic learning, which I call connecting the dots, आज मैं आपको बताता हूं कि कैसे चीजों को सही में सिस्टमेटिकली अरेंज किया जाता है, नो मैटर फॉर विच एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग। देखिए आप, जैसे मान लो मैंने आज आपको इंटीग्रल कैलकुलस का समेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज थ्रू द फाइनाइट इंटीग्रल बोला, राइट? अब दो टाइप की स्पीसीज हो सकते हैं यहां पर। नंबर फर्स्ट इज कि वट एवर आई हैव डन टिल नाउ, आप देखेंगे तो मैंने आपको बिल्कुल डेफिनेशन से लेकर गया कि इंटीग्रल क्या है, एरिया अंडर द कर्व क्या है, एरिया अंडर द कर्व को कैसे समेशन से रिलेट किया जा सकता है। फिर इफ आई गो कि इस समेशन में अगर इनफाइनाइट समेशन ले लिया जाए, सो दिस कुड बी ट्रीटेड एज द इंटीग्रल, एंड इंटीग्रल को फिर कैसे आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। और आपको बताया कि इफ द सीरीज ऑफ द स्पेशल फॉर्म, देन ओनली दिस मेथड, दिस इंस्ट्रूमेंट कैन वर्क, राइट? सो फर्स्ट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स और लाइक persons are like they are always curious about these things. Fair enough, not an issue. But second kind of persons which I always love to be, कि you should be very much arranged, you should be very much systematic. आपने समेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज थ्रू द फाइनाइट इंटीग्रल, आपने केवल फॉर्मूला रट दिया, ये भी बहुत गलत ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपको राइट गाइड नहीं मिला था, किसी ने आपको ये नहीं बताया कि एक्चुअली चीजें कैसे वर्क कर रही हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट, स्पेशली फॉर दिस सीएसई पार्ट, बी इट प्रीलिम्स, बी इट मेंस और इंटरव्यू, आई ऑलवेज सजेस्ट स्टूडेंट कि आपको ना सिस्टमेटिक रहना चाहिए और कनेक्टिंग द डॉट्स पर फोकस करना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कराया, अभी मैं उसके एग्जाम्पल भी आपको कराने वाला हूं, ठीक है? फिर हम BYQs भी देखेंगे, और उस टॉपिक पर आपकी जो समझदारी अब बनेगी, मैंने भी आपसे आधा घंटे ही लिया, इससे पहले भी आपने उस पर 4 घंटे डाले थे। क्यों डाले थे आपने 4 घंटे? क्योंकि आपको ये पता नहीं था कि वो जो एक्सरसाइज बुक में दी गई है, जिसमें 110 क्वेश्चन दे रखे हैं, आप वो सारे क्वेश्चंस लगाने का मतलब यूपीएससी की तैयारी समझ रहे थे। क्रॉस चेक इट।
आप उन 110 क्वेश्चंस को सॉल्व करने को यूपीएससी तैयारी समझ रहे थे, क्योंकि आपने इंटीग्रल कैलकुलस एट द फर्स्ट स्टेप स्टार्ट किया हुआ था, आपके पास भर भर के टाइम था. नाउ थिंक अबाउट व्हेन यू आर नियर टू प्रीलिम्स, 2-3 महीने आपको होश नहीं है चीजों को रिकॉल करने का, रिवाइज करने का. क्यों? क्योंकि 110 क्वेश्चन का बर्डन रिवाइज करना इज रियली इम्पॉसिबल फॉर जस्ट वन सेगमेंट, वन स्मॉल टॉपिक. And we have at least 50 such topics in integral calculus itself. Now imagine this, what the blunder you have done. And this is happening. Why? Because people never realize कि यार जब हम यूपीएससी में जा रहे हैं, it is not the JEE kind of exam or other thing. I am not comparing two exams. I am just trying to be like analytical over the things ki there is the need solving as much as like problems, but here the need is categorizing the problem. So when you study summation of infinite series, in spite of solving those 110 problems, just have a grip over the conceptual development through the subjective examples. You will come to know कि what are the categories which needed to be discussed. You will find hardly 2 to 3 types of questions could be discussed here with the better understanding of the concept. Now you just solve 5 to 6 more problems, that is problem solving techniques को just revise करने के लिए, and now you analyze the PYQs कि whether you have done sufficiently or not. So when I have like talked like this with you, you can really feel what the systematic learning means, because I live it. I try to be so कि हर पॉइंट पर अपने को एग्जाम के अकॉर्डिंग टिके रहना है. एंड दिस इज व्हाट वी हैव डन कि चलो एक रेगुलर प्रोग्राम होता है, उसके बाद जैसे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आते हैं, फिर टाइम किल होने लगता है, हमें ये पता ही नहीं चलता है, क्योंकि प्रीलिम्स से पहले तो हम हवाई फायर पे रहते हैं ना. एक मेंस देने के बाद होश आता है कि नहीं यार, प्री और मेन के बीच का जो गेम है वो वाकई में एक अलग गेम है, उसको एड्रेस करने के तरीके अलग हैं. वहाँ 60 से 70% टाइम ऑप्शनल पे देना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी, जीएस और एसए की भी टेस्ट सीरीज लिखनी पड़ेगी. हम पहले से सोच लेते हैं कि यार ये 3-4 टॉपिक तो बीच में 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने मिलेगा, उसमें कर लेंगे. ऐसा नहीं हो पाता है. और रीजन बीइंग कि यू आर बीइंग गाइडेड और ट्रेन्ड बाय द very well known mathematician, but not a person who have gone through the process. I'm not saying कि वो कोई इसमें कुछ नेगेटिविटी है, not at all, but आपको हमेशा ये कंसर्न रखना पड़ेगा कि यार मैं किस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं. You're getting my point? सो आफ्टर द मेंस, हाँ ठीक है, मैथ्स ऑप्शनल के साथ में एक अच्छा सा रिलैक्स फील होता है, इंटरव्यू से पहले सारी चीज़ें, तो वो एक अलग टाइम होता है, उसको जीना भी मतलब दैट इज काइंड ऑफ ना विवाह मूवी है ना. एनीवेज चलो, तो सॉरी आई टुक योर 4 to 5 minutes extra here, but I wanted to convey a message because this topic was short, so I had this chance to go for this. So let's have now examples, है ना. कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हो गया, अब एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे चीज़ों को. So let's have that example now. I'll keep this slide as it is. So where is the question? Okay. So write the question please. Find the limit n tends to infinity 1 upon n square summation r going from 0 to n minus 1 under root n minus r square. चलिए,
Now be on the board please everyone. See what happens. This is an example which you and I can solve within the seconds, not more than that. But कैसे चीज़ों को विजुअलाइज करना है, कैसे चीज़ों को हम ये कोशिश कर सकते हैं कि यार थिंग्स आर अलाइंड अकॉर्डिंग टू माय कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट. ठीक है. सो दिस इज द सीरीज गिवन टू अस, राइट. नाउ इट इज आवर ड्यूटी कि यार इसके अंदर में मेरे को जो फॉर्म पता है वो इस टाइप का पता है, f ऑफ k बाई एन इंटू 1 बाई एन टाइप का. इसके अंदर आई गेस एन स्क्वायर है क्या? जस्ट लेट मी चेक इट. या इट इज एन स्क्वायर, अदरवाइज फॉर्म नहीं बनेगा ना. इट इज एन स्क्वायर, दैट इज मिसप्रिंट दर. चले. सो द फर्स्ट स्टेप इज टू गेट दिस इनटू दिस फॉर्म. सो दिस विल बी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी summation. If you take n square outside, so n will come outside, this will become 1 minus r by n ka whole square, and r is running from 0 to n minus 1. Here it is. So this converts to that 1n cancelled here, r going from 0 to n minus 1, 1 minus r by n ka square into 1 by n, right? This is of the form. अब यहां पर लिखिए, ये आदत में रखिए, phi n is 0, psi n is n minus 1, right? So limit, अब a का वैल्यू क्या होगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी phi n by n, so that is 0 by n, that is 0 itself. b क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी psi n by n, so limit n tends to infinity n minus 1 by n, and that comes out as 1 minus 1 upon infinity. So 1 upon infinity is 0, so ultimately it turns out to be 1. So this converts to x going from 0 to 1 under root 1 minus x square dx, right? अब देखेंगे प्यारे बच्चों, कई बार क्या होता है, हम इस आदत में होते हैं कि इंटीग्रेशंस तो यार ठीक है हो जाएगा, एंड खासकर ये हम अपनी कम्युनिटी की बात करें, जैसे जैसे हम मैच्योर होते चले जाते हैं वैसे वैसे हम स्टूडेंट्स को बोल देते हैं यार तुम कर लेना, तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं आता क्या? मेरी बात समझ रहे हैं आप? बट एज आई सजेस्टेड इन द कॉन्सेप्ट टॉक्स कि भाई you have to practice these categories of integrations beforehand, no matter how good you were at the 10+2 level. So integration, if you talk about the integration under root a square minus x square dx, so how it turns out to be x under root a square minus x square plus a square साइन इनवर्स x अपॉन ए. क्रॉस चेक कर लेना उसको, राइट? सो सपोज दैट आई फॉरगेट दिस फॉर्मूला, बट इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड दोज प्रॉपरली, देन थिंग्स विल बी टर्निंग आउट easy for you. सो इंटीग्रेशंस को भी हल्के में नहीं लेना होता है, ये मान के व्हेन यू आर स्टडीइंग, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, डोंट थिंक कि यार इंटीग्रेशंस तो हो जाते हैं, इसमें क्या दिक्कत है करके. डोंट थिंक लाइक दिस, ओके? दिस कैन बी ब्लंडर फॉर यू. अब आपको लगे कि सर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है क्या? चलो ठीक है. So thing is, this is what I am talking about, the systematic learning. हमने एक conceptual development किया, एक example उठाया, example को turn out किया अपनी learnings के through, फिर हमने देखा कि अच्छा इस टाइप के questions previous years में होते हैं या नहीं. Then I got the clarity in my mind कि अब मैं फंसूंगा कहाँ पे, integrations में मैं फंस सकता हूँ, so I must solve the answers till the correct answer.
So this is what I wanted to convey here through this lecture, this concept talk. Although this topic was small, but very crux, very crunchy you can have. Okay, many of the things you could have here which possibly you have just mugged up. So summation of an infinite series through the finite integral, through the finite integral. This was the task here, right? And we have done that. If you have any suggestions, don't forget to put your suggestions. We will definitely consider your suggestions in all of the manners. So keep learning, keep smiling. Good luck.